Good morning. So we are back again with the next topic. We'll read about mouse. A computer mouse has two buttons. As you all know that in your previous class you have studied about two types of mouse. The two types of mouse are, first is the ball mouse and second is the optical mouse. A computer mouse has two buttons. There are two buttons on a mouse. You have gone to the lab and you have seen a mouse that there are two buttons. There is a left button and a right button, and in between there is a scroll wheel. There with a scroll wheel in the middle. A mouse is used to point and select an item and move items to the screen. What is the use of a mouse? It is used for pointing or selecting a item. It is a pointing device which helps and lets you draw and color pictures. Whenever you go to the lab, you open Tux Paint, MS Paint. How do you make a drawing on that? With the help of a mouse. If I ask you to draw a hut on the screen, so with the help of a mouse you are able to point an item on a pencil. How do you select a pencil tool? With the help of a mouse. So it is used for pointing or selecting an item. The mouse pointer follows the movement of a mouse. A computer mouse is of two types. First is mechanical mouse. Mechanical mouse is also known as a ball mouse. Second is optical mouse. Firstly, we'll read about the mechanical mouse. It has a movable control ball. You have always seen at the back side of the mouse there is a small ball I have shown you. This ball follows the movement of the mouse. वो जो बॉल होती है माउस के पीछे एक छोटी सी, उसको वो हम हेल्प करती है माउस को मूव करने में. दिस माउस इज ऑल्सो नोन एज अ बॉल माउस. जो बॉल होती है, जिस माउस के पीछे जो बॉल होती है, दैट इज ऑल्सो नोन एज अ बॉल माउस. मीन्स मैकेनिकल माउस इज ऑल्सो नोन एज अ ball mouse because there is a ball at the back side of it which helps to move a mouse. A mechanical mouse is a little heavy and needs to be cleaned regularly. As compared to the optical mouse, the ball mouse is a little heavier in weight. Now we read about the optical mouse. It uses a LED light for the movement. In our labs we have some of the mouses जिसके पीछे रेड कलर की लाइट जलती है. आपने देखा होगा. I have even shown you in your previous class that वो जो लाइट जलती है that is called a optical mouse. It does not have any moving parts like a mechanical mouse. उसको मूव करने के लिए हम लोग उसमें कोई ऐसा मैकेनिकल पार्ट नहीं होता है. इट इज़ लाइटर दैन अ मैकेनिकल माउस. वो मैकेनिकल माउस थोड़ा सा हेवी होता है और ऑप्टिकल माउस थोड़ा सा लाइट इन वेट होता है. एंड डज नॉट नीड मच केयर. उसकी केयर करने की इतनी नीड नहीं होती है. दीज डेज ऑप्टिकल माउस आर कॉमनली यूज. आजकल के टाइम में ऑप्टिकल माउस ज़्यादा यूज में है. Now we'll come on to the next topic, that is light pen. I'll tell you that what is a light pen. See, a light pen is a digital pen. Light pen जो होता है वो एक डिजिटल पेन होता है एंड उस पेन से डायरेक्टली हम लोग अपने कंप्यूटर पे लिख सकते हैं. इट इज़ यूज टू पॉइंट सेलेक्ट एंड ड्रॉ ऑब्जेक्ट्स ऑन बाय प्लेसिंग इट डायरेक्टली ऑन दी कंप्यूटर. वो जो लाइट पेन होता है उसको हम लोग डायरेक्टली कंप्यूटर के ऊपर प्लेस करके हम लोग उससे ड्रॉ कर सकते हैं, हम लोग उससे पॉइंट कर सकते हैं, हम लोग उससे सेलेक्ट कर सकते हैं. अ लाइट पेन इज यूज ओनली विद CRT मॉनिटर्स. जो CRT मॉनिटर्स होते हैं लाइट पेन मेनली उनके साथ यूज होता है. इट इज़ कॉमनली यूज बाई द इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, फैशन डिज़ाइनर एंड टीचर्स वाइल यूजिंग अ स्मार्ट बोर्ड. जो स्मार्ट बोर्ड होता है टीचर्स के पास वो उस पर डायरेक्टली यूज़ कर सकती हैं. और मेनली ये वाला पेन कौन कौन यूज़ कर सकता है? इंजीनियर, आर्किटेक्ट्स एंड फैशन डिज़ाइनर्स. Mouse, touch screen and light pen are some examples of pointing device. I told you that mouse is a pointing device. Fine. Now, touch screen is a computer screen. Touch screen किसको कहते हैं? जिस स्क्रीन को हम लोग टच कर सकते हैं that is called a touch screen. जैसे हमारा स्मार्टफोन होता है उसकी स्क्रीन हम लोग टच कर सकते हैं that is a touch screen phone. It lets the user work on the monitor with the touch of the fingerprints. हम लोग अपनी फिंगर्स से उसको टच कर सकते हैं. that is called a touch screen that we can do anything on that with the help of our fingerprints. For example, touch screen, smartphones, tablets, laptop में भी हम लोग डायरेक्टली अपनी फिंगर्स से वर्क कर सकते हैं.
फ़ोन में भी हम लोग डायरेक्टली वर्क कर सकते हैं, और जो हमारे पास टैब होते हैं उस पर भी हम लोग डायरेक्टली अपनी फिंगर्स यूज़ करके वर्क कर सकते हैं. Now we'll come on to the next topic, that is scanner. What is a scanner basically? Scanner is an input device. It is not an output device. It is an input device that let a user transfer data and information from a hard copy into a computer. ये हमारी क्या हेल्प करता है एक हार्ड कॉपी से कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफर करने के लिए. A scanner can read text as well as पिक्चर्स प्रिंटेड ऑन अ पीस ऑफ पेपर. स्कैनर का क्या यूज़ होता है कि वो हम लोग कुछ भी डालते हैं तो वो क्या करता है, एक उसकी वो स्कैन कॉपी उसको रीड कर लेता है. फॉर एग्जाम्पल प्रिंटेड डॉक्यूमेंट, फोटोग्राफ्स और इवन अ हैंड रिटन नोट. जितने भी हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, हमारी जितनी फोटोग्राफ्स होती है, हमारे जितने डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो उसको स्कैन करके दे देता है हम लोग को. हमारे स्कैनर भी 3 टाइप्स के होते हैं, फ्लैट बेड स्कैनर, शीट फेड स्कैनर एंड handheld scanner. Each of these scanner is used in a different way. हर एक स्कैनर का अपना एक अलग तरीका होता है काम करने का. The most commonly used scanner is flat bed scanner. आजकल के टाइम में अगर हम लोग सबसे ज़्यादा कोई स्कैनर यूज़ करते हैं तो वो हमारा होता है flat bed scanner. Now we'll read about barcode reader. What is a barcode reader? See, many of you have seen, you people go to the lab. ठीक है, lab नहीं, sorry, you people go to the mall. ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, आप लोग कुछ भी अगर परचेज करते हो वहाँ से, हमेशा उस पर एक बार कोड लगा होता है. हाँ, उसके बाद वो परचेज करने के बाद आप लोग जब जाते हो बिलिंग करवाने उसकी बिलिंग सेंटर पे, तो क्या होता है, वो लोग उस बार कोड को स्कैन करते हैं. लाइक इन बिग बाजार ऑल्सो, कि वो लोग हर एक आइटम पे जितना बार कोड होता है, वो बार कोड ना ऑलरेडी उनके कंप्यूटर में फीड होता है, उस पर उनका अमाउंट होता है उस बार कोड में. वो लोग उसको स्कैन करते हैं तो डायरेक्टली वो हमारे उस आइटम की बिलिंग हो जाती है. दैट इज कॉल्ड अ बार कोड. इट इज़ अ हैंड हेल्ड स्कैनर. हैंड हेल्ड होता है, जो हम लोग हाथों से पकड़ते हैं उसको, जो बिग बाजार वाले जो पकड़ते हैं उसको जिसमें स्कैन करते हैं, वो हैंड हेल्ड होता है क्योंकि वो हमारे हैंड में आ जाता है और हैंड के यूज से हम लोग उसको स्कैन कर पाते हैं. एंड इट इज़ यूज कॉमनली यूज इन मॉल्स एंड शॉप्स. आई टोल्ड यू इट इज़ यूज इन मॉल्स. इट रीड्स और स्कैन्स द बारकोड दैट अपीयर्स ऑन डिफरेंट आइटम्स. वो बारकोड को रीड कर लेता है और उसको स्कैन कर देता है. द स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन इज डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर. और उसका जो बारकोड को रीड करके वो उसका जो एक्चुअल प्राइस होता है वो हम लोग की स्क्रीन पे हम लोग को शो हो जाता है. अ बारकोड इज अ पैटर्न ऑफ ब्लैक एंड वाइट लाइन. बारकोड कैसा होता है, उसमें ब्लैक और वाइट कलर की लाइन्स होती हैं, मोस्टली सबने देखा होगा. अ बारकोड इज अ पैटर्न ऑफ ब्लैक एंड वाइट लाइन्स ऑफ डिफरेंट थिकनेस. हर एक अलग अलग थिकनेस की लाइन्स होती हैं. मीन्स कुछ लाइन्स उसमें पतली होती है, कुछ लाइन्स उसमें थोड़ी सी ब्रॉड होती हैं. दिस पैटर्न कंटेन्स द प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन सच एज इट्स नेम, प्राइस, वेट एंड सो ऑन. उस बारकोड में क्या क्या होता है, उसका प्राइस तो इंक्लूड होता ही होता है, साथ में उस आइटम का कितना वेट है और उस आइटम का नाम क्या है. तो वो क्योंकि हर एक सबका तो बारकोड सेम होता है, नंबर्स अलग होते हैं. हाँ, तो कैसे पता चलेगा हम लोग कौन सा आइटम स्कैन कर रहे हैं, तो वो लोग उस बारकोड में उसका वेट मेंशन कर देते हैं और क्या आइटम नेम है वो मेंशन कर देते हैं और उसका एक्चुअल प्राइस मेंशन कर देते हैं. दिस इज द यूज ऑफ बारकोड रीडर, कि वो जल्दी से बारकोड हमारा रीड कर लेता है. नाउ वी विल कम ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज वेबकैम. व्हाट इज अ वेबकैम? वेबकैम इज अ डिवाइस, सी वो जो हमारे कंप्यूटर के ऊपर लगा होता है जिससे हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं. Webcam is a short form of a web camera. A webcam is connected to a computer to capture still images and record videos into a computer. It is used to have a live video chat and video conferencing through the internet. इससे हम लोग live video chat भी कर सकते हैं और ये हमारी still images भी capture कर सकता है. Nowadays most computers can come with built-in webcams. आजकल जो computers अब आते हैं उसमें क्या होता है, इनबिल्ट होता है. इनबिल्ट का क्या मतलब होता है? इनबिल्ट का मतलब होता है कि उसमें ऑलरेडी पहले से आता है, हम लोग को अलग से वेबकैम या वेब कैमरा उसमें अटैच करने की नीड नहीं है, ऑलरेडी इनबिल्ट होता है. इनबिल्ट मतलब उसके अंदर ही होता है, कंप्यूटर के डिवाइस के अंदर होता है. दैट इज कॉल्ड एन इनबिल्ट ऐप. So we'll keep it over till here only. Next I'll be explaining you in the next part. Thank you.